Hello students. Up to the last lecture we have seen how to read given line graph or given linear graph, and after that the questions which are related to that, how to give answer of those questions. All other things are related to those points or that point we have discussed before that in two videos. Means we can say in the last two videos we have discussed how to read a linear graph. Okay, and after reading that linear graph, how to give answers regarding to that. Do you understand? Okay, I hope you got idea about the last two videos. Today I am here with a new example, a new video that is very important example. In your first exercise, like that examples are asked. Okay, what will be the question? Look here, you will come to know that I have written here in the top. Use the given table and draw linear graph. Use the given table and draw linear graph. Like that question will be there. Means like that table will be there which I have shown here. Look, this table you will come to know that in the first horizontal row what is written? Time is written over there: 8 a.m., 9 a.m., 10 a.m., 11 a.m., 12 noon, 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m. And this then distance covered, that is given in kilometer. Means 8 a.m. 0, 8 a.m. maybe that traveling started, that's why distance is over there, that is 0. The next one, look, then 50 kilometer, then 150 kilometer, then 200 kilometer, then again 200 kilometer. Means 11 to 12 there is, I think, no traveling. Then 1 p.m. 250, then 2 p.m. 300, and 3 p.m. 350 kilometer. Like that distance covered by that specific car or whatever it may be, specific that person with the help of car or whatever, any vehicle over there. Okay, use the given table and draw linear graph. This is the main question given to us. Means while drawing a graph we have to use this table. Means while drawing a graph, how to use this table, that is the question, some question in front of some students. Okay, I am going to suggest you, when you are going to draw, or I am going to tell you when you are going to draw a graph, that time the first horizontal table which is shown over there, that is time, that you have to represent on. Means whatever first horizontal table is there, now here time is shown, it may happen in the given table different type of information will be there. Okay, that time whatever given in the first horizontal row, that you have to show on x-axis, and whatever is given in the second horizontal row, okay, that you have to show on y-axis. that you must remember. अभी इधर देखो, ध्यान से अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, एक हॉरिजॉन्टल रो इधर दिया है. ओके, ये हॉरिजॉन्टल में ये जो पॉइंट्स दिए है, ये जो टाइम दिया है, ये हमें एक्स एक्सिस पे दिखाना है. यानी कि पहला जो हॉरिजॉन्टल रो होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पे ही दिखाना है, और दूसरा जो हॉरिजॉन्टल रो होगा वो वाई एक्सिस पे दिखाना है. कभी कभी कैसा होता है, दो हॉरिजॉन्टल रो दूसरा और तीसरा भी दिए जा सकते हैं. यानी कि ऐसे अभी एक दिया है, ये जो पहला एक ही होगा ये हमें एक्स एक्सिस पे ही दिखाना है, और इसके साथ और एक भी इधर हो सकता है, तो ये दोनों वाई एक्सिस पे दिखाने होते हैं. तो उसके डबल लाइन ग्राफ और डबल लिनियर ग्राफ भी बन जाएंगे. समझ में आ रहा है? तो ये की ग्राफ पेपर पे हमने लास्ट टाइम में एग्जांपल देखा था बैट्समैन का. बैट्समैन में दो बैट्समैन की जो स्कोर थी वो उधर दिखाई थी. उस टाइप का जो ग्राफ होता है वो दोनों लिनियर ग्राफ ही थे, यानी कि लाइन ग्राफ ही थे. लेकिन बाय यूजिंग वाई एक्सिस वी हैव शोन दैट वन, एंड एक्स एक्सिस पे कॉमन जो होता है वही लिखा जाता है. अभी इधर जो पहला हॉरिजॉन्टल रो दिया है दैट वी विल राइट ऑन द एक्स एक्सिस, एंड सेकेंड वी विल राइट ऑन द वाई एक्सिस. और जब अभी तुम लीनियर ग्राफ निकालोगे तो पहली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, देखो, वी हैव टू सिलेक्ट द स्केल. ओके, इधर मैंने लिखा है, देखो, स्केल. वी हैव टू सिलेक्ट स्केल. ओके, सी दिस केयरफुली. ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 आवर, एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर. ओके, तो स्केल कैसे डिसाइड करना होता है, देखो, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. स्केल को हम कैसे डिसाइड करते हैं? स्केल जब हम डिसाइड करना शुरू करते हैं तो स्केल डिसाइड करते वक्त कौन सी बातें हमें ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है. अब ये देखो, टाइम जब इधर हमने क्या लिखा है, तो देखो, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 आवर. ओके, यानी कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर पे हम 1 आवर के क्या लेने वाले हैं, 1 आवर का टाइमिंग उधर दिखाने वाले हैं. समझ में आ गया? ओके, देन हाउ टू शो दैट वन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और हमने 1 आवर ही क्यों डिसाइड किया है?
अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, 1 to 2, 2 to 3। इसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, 1 आवर का ही है। तो जब हम ये रिप्रेजेंट करने वाले हैं एक्स एक्सिस पे, तब हम क्या कर सकते हैं, उसको 1 आवर का डिफरेंस में लिख सकते हैं। ओके, एक्स एक्सिस का जो स्केल होता है, एक्स एक्सिस का स्केल कभी बदलता नहीं, यानी कि जो डिफरेंस दिया है उसी हिसाब से ही हमें वो लेना पड़ता है। वाई एक्सिस का जो स्केल है वो तुम पे डिपेंड करता है। वाई एक्सिस का स्केल मैंने जैसे लास्ट टाइम हिस्टोग्राम में भी बताया था तुमको, वाई एक्सिस का जो स्केल है वो लेते वक्त तुम्हारे हिसाब से भी ले सकते हो। अभी इधर देखा तो 0 to 50, 50 to 150 है, 150 to 200 है। तो देखा जाए तो एवरीवेयर जो डिफरेंस है वो सेम है ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन उसके बाद भी आफ्टर दैट ऑल्सो वी हैव टेकन ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। क्यों लिया है हमने, फॉर आवर कन्वीनियंस। इधर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 भी ले सकते हो, तुम 40 भी ले सकते हो, तुम 50 भी ले सकते हो, तुम 60 भी ले सकते हो, तुम्हें जो अच्छा लगे, यानी कि तुम जैसे रिप्रेजेंट करना चाहोगे वैसे तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 भी लेना है तो भी ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है, यानी कि वाई एक्सिस का जो स्केल है दैट इज डिपेंड अपॉन यू। और हमने इधर वाई एक्सिस का जो स्केल है वो इधर डिसाइड किया ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर एंड ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 आवर। ओके, अभी ये देखो इधर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये कैसे ड्रॉ किया है मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तुम्हें ये ग्राफ निकालना और इसके टाइप के जो एग्जांपल्स है वो भी तुम्हें सॉल्व करने हैं। ओके, अभी इधर ध्यान से देखो, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। वो लिखा कैसे जाता है, देखो इधर ध्यान से देखो, एक्स और इधर लिखा है हमने एक्स डैश। और वर्टिकल लाइन जो होती है उसको कहते हैं वाई एक्सिस, वाई एंड डाउन साइड वाई डैश। ओके, whatever given in the first row that we have written on x axis। अब x axis पे देखो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। x axis पे क्या लिखा है, टाइम लिखा है। और y axis पे क्या लिखा है, डिस्टेंस कवर्ड। तो इधर हम क्या कर सकते हैं, पेंसिल का यूज़ करके, नहीं तो लिखते वक्त हम ऐसे पेन से भी इधर हम मेंशन कर सकते हैं। x axis पे जो लिखा है वो क्या है, टाइम। और y axis जो है, y axis पे क्या लिखा है, डिस्टेंस कवर्ड। समझ में आ रहा है, डिस्टेंस कवर्ड एंड दैट इज गिवन इन द किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड जो वाई एक्सिस पे दिखाया है। अभी देखो हमने जो स्केल लिया है, स्केल के हिसाब से, अभी इधर जो जैग्ड लाइन, इसको मैंने लास्ट टाइम तुमको बताया था, उसको क्या बोलते हैं, इधर देखो ये वैली जैसा बनाया हुआ है, उसको बोलते हैं जैग लाइन, अदरवाइज ब्रोकन लाइन, अदरवाइज उसको क्रिंक मार्क भी बोलते हैं। ओके, तो 1 सेंटीमीटर पे हमने क्या लिखा है, देखो 8, 9, 10, 11, 12। तो AM जिधर नून है उधर नून, जिधर PM है उधर PM लिखा है हमने। और वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400। ओके, ये जो हमने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर का, तो इधर 50 से स्टार्ट किया तो 50 के बाद 100। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे इधर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, सर इधर 50 के बाद 150 है तो आपने इधर 100 कैसे लिया है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड, ये जो हमें दिया है ऑन वाई एक्सिस पे दिखाने के लिए वो उन्होंने दिया हुआ स्केल है। ओके, हमें क्या करना है, इधर अपना स्केल बना के वो वाई एक्सिस पे लिखना होता है। तो 50 के बाद हम 150 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 50 और 150 में कितना डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है। लिख सकते हैं, यानी कि 100% लिख भी नहीं सकते ऐसा मैं नहीं कह सकता। यानी कि इधर 50 के बाद 150 लिखना है तुम्हें, इधर 150, तो 150 के बाद 300 लिखने पड़ेंगे, सॉरी 150 के बाद 250 लिखने पड़ेंगे। 250 ही क्यों, क्योंकि डिफरेंस कितने का है हमने लिया, पहले दो स्केल में 100 का डिफरेंस लिया है, तो नेक्स्ट दो स्केल में भी 100 का डिफरेंस ही मेंटेन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अभी देखो 50 का हमने क्या किया है, स्केल लिया है, तो इधर 50 लिखा तो 50 के ही डिफरेंस में हमें नंबर लिखने पड़ेंगे। 50, 100, 150 वी हैव टू राइट like that, means difference in between two numbers must be 50. Got idea? In case of other cases what we can say, now suppose you want to take here 50 के बाद 150 अगर लेना है तो इधर क्या आएगा, 250 आएगा, 250 के बाद 350, यानी कि 100 का डिफरेंस में लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। स्केल जो वाई एक्सिस पे है वो तुम्हारे हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
अभी ये जाग लाइन जो मैंने बनाई है इधर, ओके, वो 1 सेंटीमीटर में जाग लाइन और क्रिंक मार्क बनाया, वो क्यों बनाया है? दैट ऑल्सो लास्ट टाइम आई टोल्ड, मे बी यू फॉरगॉटन, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रिपीट इट। लुक हियर, 0 से लेकर 8 तक जो बीच में के नंबर है, यानी कि 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, वो नंबर्स बीच में के नहीं हैं। ओके, 0 के बाद अगर डायरेक्ट इधर 1 आ रहा है, ओके, 0 के बाद डायरेक्ट अगर 1 आ रहा है, 1 2 3 4, तो इस जाग लाइन निकलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बीच में के नंबर नहीं है, तो बीच में के नंबर नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया है, उधर जाग लाइन निकाली है। समझ में आ रहा है? तो अभी ये हमने डिस्टेंस जो था वो भी लिखा, इधर टाइम भी लिखा, और दोनों लिखने के बाद, यानी कि स्केल सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, ये पॉइंट्स हमें इस्टेब्लिश करने हैं, प्लॉट करने हैं। पॉइंट कैसे प्लॉट करने हैं, देखो 8 AM को कितना है, 0, तो कैसे स्टार्ट करना है, देखो 8 AM 0, यानी कि उसी पे ही पॉइंट आएगा। 8 o'clock जब हुआ था टाइमिंग, वो जो कार होगी और कोई भी वो आदमी होगा वो उधर ही था। ओके, तो इधर दिखाया हमने। 9 जब बजे, तो वो कितनी किलोमीटर का डिस्टेंस उसने क्रॉस किया था, 50 किलोमीटर का। तो इधर से 9 के सीधा ऊपर जाना है। ओके, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और 8 के ऊपर ही लगा देते हैं, नहीं, जिसके सामने जो दिया है वो उसी के सामने दिखाना है। 9 के सीधा ऊपर जाना और 50 से भी इधर आना है। और जिधर इधर देखो ध्यान से, तुम्हें ध्यान से देखा तो समझ में आएगा, इधर से एक लाइन ऊपर जा रही है, इधर से एक लाइन हॉरिजॉन्टली आ रही है। देखो मैं अभी दिखा रहा हूँ, इधर जिधर इंटरसेक्ट होता है उधर मैंने पॉइंट लिया है और उसको एक राउंड बनाया है। राउंड बनाना हर बार ज़रूरी नहीं है, वो समझने के लिए मैंने राउंड बनाया है। ओके, अभी देखो 10 o'clock को टाइमिंग, 10 o'clock को कितना डिस्टेंस कवर किया, 150 किलोमीटर। तो 10 o'clock को हम किधर तक गए, 150 तक गए, उधर पॉइंट लिया। 11 o'clock को कितना डिस्टेंस कवर किया, 200, तो 11 o'clock को हमने एक किया, देखो 200। वैसे ही 12 o'clock को भी वो 200 तक ही थे, तो इधर पॉइंट प्लॉट हो गया। 1 o'clock को तो किधर गए, 250 किलोमीटर तक गए। ध्यान से देखो ग्राफ को, 1 o'clock को जब हुआ था तब वो 250 किलोमीटर गए थे, तो 250 के यहाँ पॉइंट दिया है, देखो इधर ध्यान से देखो। 2 o'clock को 300 गए और 3 o'clock को डायरेक्ट 350 किलोमीटर तक गए। समझ में आ रहा है? यानी कि उसके सामने ओनली ऐसे पॉइंट्स हमें प्लॉट करते जाने हैं। ओके, इतना ही सिंपल होता है। ओनली इसमें एक ही पॉइंट है, वो स्केल लेने का है। स्केल जो ले रहे हो वो ध्यान से ले लो। स्केल लेने के बाद एक्स एक्सिस पे तो कुछ स्केल लेने की कोई झंझट ही नहीं है, जैसे दिया होता है वैसे ही उधर कॉपी करना होता है। ओके, देखो इधर हमने ऐसे ही कॉपी किया है, एज इट इज कॉपी किया है। तो ओनली किसका पॉइंट होता है, वाई एक्सिस का पॉइंट होता है। वाई एक्सिस का स्केल निकालने के लिए मैं दूसरे एक शॉर्टकट में तो तुम्हें बताता हूँ। लोएस्ट और हाईएस्ट नंबर देखो, इधर लोएस्ट नंबर है 0 और हाईएस्ट नंबर है 350। तो इधर हमने कितने का डिफरेंस लिया था, 50 का डिफरेंस लिया था। समझ में आ रहा है? अगर समझो 10 तक ही नंबर है, ओके, डिफरेंस क्या है, 10 तक ही है, 10 तक ही है, तो 1 2 3 4 ऐसा भी लोगे तो भी चलता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हमें क्या करना है, टेबल देखना है पहले, बाद में एक्स एक्सिस पे कौन से नंबर आएंगे देखना है, वाई एक्सिस पे जो नंबर आते हैं वो देखना है। दोनों नंबर के बाद हमें जो एक्स एक्सिस पे स्केल लेना है वो डिसाइड करना है, बाद में जो हमें वाई एक्सिस पे लेना है वो डिसाइड करना है। एक्स एक्सिस पे डिसाइड करते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं आती, एज इट इज़ कॉपी करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ऐसी है, जब हम वाई एक्सिस पे लेते हैं तो वाई एक्सिस का स्केल तुम पे निर्भर करता है, जैसे तुम लोगे उसी हिसाब से तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, तुम थिंक करो और बाद में डिसाइड करो। बाद में क्या करना है, देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन एक निकालनी है। हर बार की ये जाग लाइन जो मैंने इधर लिखा लिया है वो जाग लाइन आती ही नहीं है, क्योंकि 0 के बाद अगर 1 2 3 4 ऐसा आया तो जाग लाइन निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये बात ध्यान से सुनो और ड्रॉ करते वक्त ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो फॉलो करो। हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी है, उसको बोलना है एक्स एक्सिस, बाद में लिखना है, बाद में वर्टिकल लाइन निकालनी है, उसको बोलना है वाई एक्सिस। ओके, और बाद में जैसे हमें रीडिंग दिया है इधर, उसी के हिसाब से बाद में जैसे हमें रीडिंग दिया है उसी के हिसाब से हमें पॉइंट प्लॉट करते जाने हैं, और बाद में स्केल लेके वो पॉइंट्स क्या करने हैं, जोड़ने हैं। इसी को बोलते हैं लीनियर ग्राफ, और वी कैन से लाइन ग्राफ। समझ में आ रहा है? ऐसे ध्यान में रखो जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है। और ये ग्राफ तुम क्या करो, ग्राफ पेज पे ही निकालो तो तुम्हें वो आइडिया आ जाएगी। ग्राफ पेज पे निकालने के बाद उस पर थोड़ा सा गौर करो, और तुम्हारे एक्सरसाइज 1 में यानी कि 15.1 में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं
वो एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। अभी मैंने इधर जो ग्राफ दिखाया है ये ओनली वन लाइन है। अगर इसके बाद है और एक इधर उन्होंने टेबल दिया हो तो वो दोनों टेबल हमें वाई एक्सिस पे दिखाने होते हैं, तो इधर दूसरी भी एक लाइन आ सकती है, जैसे मैंने बैट्समैन का एक एग्जांपल तुम्हें लास्ट टाइम रीडिंग के लिए दिखाया था। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? तो दो ग्राफ भी इधर हो सकते हैं। आई होप यू गॉट आइडिया अबाउट दिस ग्राफ। रिमेनिंग वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।